اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام احباب کو آج کے اس سبق نمبر 19 کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آگے چلنے سے پہلے گزشتہ اسباق سے چند سوالات۔ رحیم کا معنی بتائیے۔ اچھے اخلاق والا، کبھی کبھی رحم کرنے والا، خوبصورت، مسلسل رحم کرنے والا۔ ABCD جی۔ مسلسل رحم کرنے والا۔ الصالحات کا معنی بتائیے۔ برے اعمال، اچھا عمل، اچھے اعمال، اچھا۔ ABCD الصالحات جی، اچھے اعمال۔ یسرنا کے معنی بتائیے۔ یہ آسان بنایا گیا ہے، ہم نے بنایا آسان، آپ نے بنایا آسان، ان سب نے بنایا آسان۔ ABCD جی۔ یسرنا نا کا صیغہ ہے، ہم نے بنایا آسان۔ تو آئیے آج کا سبق جو ہے دیکھتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے جو ہے چند دعائیں جو ہے وہ سیکھنی ہیں جو قرآن پاک میں آئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے گرامر میں عابد، دارب، سامع، عالم، عامل جو ہے یہ ان کے جمع بنانے کا طریقہ دیکھنا ہے۔ آئیے اس سبق میں انشاءاللہ ہم آج نئے الفاظ سیکھیں گے، اور اس طرح ہمارے کل جو ہے وہ الفاظ 232 ہو جائیں گے، جو قرآن پاک میں 41,111 بار آئے، اور یہی ہمارا ٹارگٹ تھا۔ الحمدللہ کہ آج ہم اپنے ٹارگٹ کو پورا کر لیں گے۔ پچھلے دو اسباق میں ہم نے یہ پڑھا تھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے۔ اور دوسرا ہم نے یہ ایک حدیث مبارک پڑھی تھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو، یعنی قرآن کو۔ اور اس کے ساتھ ہم نے ایک اور حدیث لی تھی انما الاعمال بالنیات، بس اعمال تو نیتوں پر ہے۔ تو تیاری کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ بار بار دعا کیجئے، وسائل کا استعمال کیجئے، اور مسابقت یعنی ایک دوسرے سے جو ہے مقابلے کا جذبہ، دین کے اندر جو ہے مقابلے کے جذبے کی جو ہے وہ اجازت ہے۔ تو آئیے آج ہم یہ خاص دعا پڑھتے ہیں، رب زدنی علما۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو دعائیں عطا کی ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو ہم تشہد میں جو ہے وہ پڑھتے ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور دوسری یہ دعا ہے رب زدنی علما۔ یہ جو دعا ہے رب زدنی علما، آئیے پہلے اس کا لفظی ترجمہ لیتے ہیں، پھر اسباق میں بات کریں گے۔ رب، اے میرے رب، یہ زیر جو ہے یہ یہاں پہ یا کو یعنی یا متکلم کو ظاہر کر رہی ہے۔ زدنی، زد کے معنی ہوتا ہے بڑھا دے، نی مجھ کو، یعنی بڑھا دے، زیادہ کر دے مجھے، اس میں علم میں۔ تو ایک مختصر سی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو اسلوب ہے قرآن کے اندر وہ بڑے ہی عجیب ہے کہ بہت مختصر سی جو ہے الفاظ میں ایک بہت بڑا جو ہے مفہوم اور بہت وسیع جو ہے معنی آ جاتے ہیں۔ رب زدنی علما، 3 لفظ، اور اس کی تشریح کرنے بیٹھے تو اس کی تشریح ہم سے نہیں ہوتی۔ علم کی کوئی حد ہی نہیں ہے، علم ہے کیا اور کتنا ہے، اور پھر وہی نہیں بلکہ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس میں اضافہ بھی کر۔ تو یہ اتنی وسیع معنی کی دعا ہے کہ جس کا مطلب، لیکن دیکھیے بولنے میں، یاد کرنے میں کتنی سہل آسان ہے۔ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ علم دیا گیا تھا،
لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ دعا پڑھو، یعنی اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ دعا پڑھا ہے میرے پیارے نبی، تو ہمیں بھی اس دعا کو پڑھنا چاہیے، ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے کہ پرورش کرنے والا وہ ہے، رب ہے جو کروڑوں مخلیوں کا حالات اور کیفیات کا مالک ہے، اس سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ تو آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، بالخصوص قرآن کو یاد کرنے اور سیکھنے کے لیے، اور اس سے پہلے یہ تھا کہ وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيًا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کوشش کرتے تھے جلدی جلدی اسے دہرانے کی کہ بھول نہ جاؤں، تو اس پہ آپ کو جو ہے یہ الفاظ میں کہا گیا کہ آپ جو ہے جلدی مت کریں قرآن کے اس میں، بلکہ آپ جو ہے ٹھہر کے کریں، یہ جو ہے اس کو یاد کرانا ہمارا کام ہے، آپ یہ کہیں ربی زدنی علما، یعنی اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ ایک ایسا شخص جس کا کل بڑا آپریشن ہونے والا ہے وہ کیسے مانگے گا؟ ظاہر وہ گڑ گڑا کے مانگے گا، اللہ تعالیٰ میرے یہ مصیبت، میری یہ تکلیف کو آسان فرما، میرے یہ آپریشن کو کام کیا، لیکن وہ جو انداز ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ اس طرح خالی خالی نہیں ہوگا جیسے ہم کہتے ہیں رب زدنی، نہیں، وہ دل سے جو ہے اور گہرائی سے، جذبے سے، لگن سے جو ہے وہ مانگے گا۔ ایک ایسا شخص جو کئی دن سے بھوکا، وہ کیسے مانگے گا؟ آپ نے دیکھا ہوگا بعض فقیر ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے مانگتے ہیں، یعنی آدمی کو جو ہے وہ دیکھ کر اپنی جان چھڑانی پڑتی ہے، ان کا انداز طرز کیا ہوتا ہے، وہ اس کی ضرورت ہوتی ہے یا اس کا پروفیشن ہوتا ہے۔ تو یہاں ہمارا پروفیشن، ہماری ضرورت کیا ہے؟ ہمیں علم چاہیے، اور علم کے لیے جو اللہ نے کہا کہ آپ یہ دعا کریں، تو تڑپ سے، شدت سے، دل سے، اور بار بار نماز سے پہلے یا بعد میں، یا آیت الکرسی کے بعد جو ہے وہ یہ دعا کریں۔ آیت الکرسی میں بذات خود جو ہے علم جو ہے وہ لفظ 2 دفعہ آیا ہے، تو لہٰذا وہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد ساتھ میں کہیں رب زدنی علما۔ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دعا جو ہے اتنی پر اثر ہے کہ اس شخص کے علم میں اضافہ ہوتا ہے جو اس کا ورد کرتا ہے یا اسے پڑھتا رہتا ہے۔ اے اللہ جہالت کی بیماری سے نجات دے کہ قرآن بھی سمجھ میں نہیں آتا، تو لہٰذا اتنا علم عطا فرما کہ ہم جو ہے قرآن کو کم از کم سمجھ لیں، اور دعا کے ساتھ ہمیں چاہیے ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں وقت لگائیں، اور علم کس لیے؟ تاکہ اس پر عمل ہو، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، اور اس کو پھیلایا بھی جائے۔ بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ جتنا معلوم ہے اس پر عمل کرو، زیادہ علم کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھیے اللہ نے صرف علم میں زیادتی کی دعا سکھائی ہے، علم زیادہ ہوگا تو عمل کرنا آسان ہوگا، اس لیے کہ یہ بات زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ یعنی علم جو ہے وہ انسان کو برائی اور نیکی میں، ہدایت اور گمراہی میں، حق اور باطل میں فرق سکھاتے ہیں۔ تو آئیے گہرے تصور احساس کے ساتھ اس کا ترجمہ آپ میں سے کوئی کر دے، ربی زدنی علما۔ جی، کون کرنا چاہے گا؟ چلے سسٹر نہید، آپ نے انمیوٹ کر لیا، آپ کر دیجئے اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی، اے میرے رب، زدنی، زیادہ کر مجھے، علما، علم میں۔ جزاک اللہ خیر۔ آئیے اس کے سوال جواب دیکھتے ہیں۔ زدنی کے معنی بتائیے، زیادہ کر ہمیں، زیادہ کر اسے، زیادہ کر انہیں، زیادہ کر مجھے، ABCD۔ جی، زیادہ کر زدنی، مجھے، زیادہ کر مجھے، جی۔ ابھی تو کہا تھا اللہ تعالیٰ نے رب زدنی علما سکھایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، موسیٰ علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو، ABCD۔ جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلامی تعلیمات کے سب سے اہم ذرائع ہیں، ایک سے زائد جواب کا انتخاب کیجیے۔ بڑے لوگ، حدیث، قرآن، تاریخی کتابیں، ABCD۔ اسلامی تعلیمات کا چاروں ہیں، نہیں، حدیث اور قرآن یاد رکھیں۔ اسلامی تعلیمات کا ماخذ جو ہے، آخذ جس سے کیا جاتا ہے، قرآن اور حدیث ہے۔ قلم اور سارے وسائل کے استعمال کیجیے۔ یہ ایک اور آیت مبارکہ ہے جو سورہ الگ کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ الذی علم بالقلم، الذی جس نے، علم سکھایا، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا تعلم اور علم میں فرق ہے۔ علم سکھایا، تعلم
सीखा बिल कलम कलम से। अब ये देखिए कितनी मुख्तसर सी ये आयत है, 3 अल्फाज, अल्लाज़ी अल्लम बिल कलम, याद करने में आसान, समझने में आसान, लेकिन ताल्लुक उसका देखें क्या है, 2 चीजें हैं सिर्फ, इल्म और कलम। यानी कलम का इल्म से गहरा ताल्लुक है। आप किसी भी जो है वो कोर्स को करना चाहते हैं, किसी भी जुबान को सीखना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप कलम लेते हैं और उसके वायद को लिखना शुरू करते हैं, अल्फाज मानी को और उसके मुख्तलिफ जो है शुरात को जो है लिखना शुरू करते हैं। यहाँ हम जबान सीख रहे हैं, कुरान की जबान सीख रहे हैं, तो हमें भी जो है कलम को पकड़ना चाहिए। तो अल्लाजी वो जो जिस, अल्लाजी वाहिद होता है, अल्लाजीना इसका जमा है, और इसको याद करने का जो है वो कुलिया क्या था, सरात अल्लाजीना नम था, वहां से ये इसके मानी। और अल्लमा ये हमने पहले पढ़ लिया था, खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहु, ताल्लम सीखना, अल्लमा सिखाना, बिल कलम कलम के साथ। तो आइए इसके असबाक लेते हैं इस आयत मुबारका के। लिहाजा फौरन कलम उठा लीजिए, वादा कीजिए कि अल्लाह तेरी किताब के लिए कलम का इस्तेमाल करूंगा या करूंगी। आपने लाखों करोड़ों अल्फाज लिखे होंगे, अब आप कुरान और अरबी सीखने के लिए भी उसका इस्तेमाल करें। कहाँ लिखेंगे, नोटबुक कहाँ है, किताब कहाँ है, कौन सी हो, सुस्ती और लापरवाही से नहीं, बल्कि पूरे शौक और इखलाक के साथ नियत कीजिए कि पूरे कुरान के नोट्स बनाएंगे इंशाल्लाह, और इल्म सीखना है तो इसी के जरिए है। यानी आप जो कुछ अरबी पढ़ते हैं, कुरान का पढ़ते हैं, कोई चीज़ आपको उसमें नहीं मिलती है, लफ्ज़ मिलते हैं, क़वाइद मिलते हैं, उनको लिखे, और लिख के जो है वो याद करना आसान होता है बनिस्बत ज़बानी के। ज़बानी भूल जाता है, लिखा हुआ आपके पास होता है, आप बार बार देख सकते हैं। जदीद तहकीक के मुताबिक लिखने से सीखने का अमल काफ़ी मौसर हो जाता है। मसलन लिखने के लिए पहले आपको गौर से पढ़ना होगा या सुनना होगा, फिर जब आप लिखते हैं तो दिमाग जो है आँख और उसके लिखने की हाथ की उंगलियां सब मिलकर और बकिया जिस्म जो है खामोश रहकर काम करते हैं, और इस तरह गोया सारा जिस्म इल्म हासिल करने में लग जाता है। वो जो हम आपको KPI बताते हैं कि जी सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, लिखिए, या जो है वो हाथों को जो है इस्तेमाल कीजिए, और सबसे बढ़ के दिल से कीजिए, ये क्या है, ये इल्म सीखने की आसानियां हैं। तो आइए गहरे तसव्वुर और दुआ के एहसास के साथ इस आयत मुबारक का आप में से कोई तर्जुमा कर दे। जी ब्रदर नईम, आज आप कीजिए। ब्रदर नईम सदीक, प्लीज इस आयत मुबारक का तर्जुमा कीजिए। चले कोई और कर दे, गालबन का मैं बोल दूं सर, मैं पढ़ दूं? पढ़ दीजिए आप। अल्लाजी जो या जिसने, अल्लामा सिखाया बिल कलम कलम से, अल्लाजी जिसने सिखाया कलम से। सुभान अल्लाह। आइए इसके सवाल जवाब लेते हैं। अल्लाह जीना के मायने बताइए। वो जो, वो लोग, ये जो, वो लोग जो, ABCD जी। अल्लाह जीना जमा का सिगा है, अल्लाजीना वो लोग जमा। सर मेरे सामने वो बोर्ड लोग, तो है नहीं ना, लोग जो, मैं देख लेकिन आप सुन तो रही है ना, अभी मैंने सारे दोहराए थे। मुसाफिर रखने के लिए जो है ये वो सूरतुल जमा। मुल्क जो है उसकी एक आयत है, जी, अय्युकुम अहसनु अमला। देखिए अय्युब तीन, कौन है तुम्हें यानी बताने? 3 अल्फाज की आयत मुबारक है। अय्युब जी कौन है तुम में से, अहसना बेहतर में, यानी अच्छा, किसमें, अमला अमल। आज की इन तीनों हदीसों में आपने देखा होगा, हमने इल्म और उसके साथ साथ अमल जो है वो सीखा। यानी इल्म हासिल करना है, और इल्म किससे करना है, कलाम से हासिल करना है, और फिर अगली चीज है उस पर अमल करना है। यानी इन तीनों आयतें जो हैं, इनको अगर आप अपने ज़हन में रखते हुए इसका ताल्लुक जोड़ने की कोशिश करें तो पता चलेगा। अल्लाह ताला से हम दुआ कर रहे हैं कि हमारे इल्म में इजाफा फरमा, और उस इल्म का जो कलम से आपने सिखाया, और हम में से वो अच्छा है, बेहतर है जो उस पर अमल भी करे। यानी इल्म का सिर्फ यही नहीं है कि आप हासिल कर ले, आपको आता हो, या आप दूसरों को बताते फिरे, नहीं, खुद आपने भी उस पर अमल करना है। तो अमल जो है वो
علم کی ایک بنیادی ضرورت ہے، بنیاد ہے، یعنی علم اس وقت اصل ہوگا جب اس پر عمل ہوگا، اگر عمل نہیں ہوگا پھر وہ علم ہے، الفاظ ہیں اور بوجھ ہے۔ ایوکم یہ دو لفظ ہوتے ہیں، ایوک کون، کم تم میں سے، ایوکم کون تم میں سے، احسن بہتر ہوگا۔ یہ دیکھیں حسن یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، احسن اور حسن زیادہ اچھا بہتر، یہ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں۔ اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے کبیر، اس کے معنی ہوتا ہے بڑا، جب اس کے ساتھ ہم الف لگا دیتے ہیں یہ بن جاتا ہے اکبر سب سے بڑا، صغیر چھوٹا اس کے ساتھ الف لگایا اصغر سب سے چھوٹا، حسن اچھا الف لگایا احسن سب سے بہتر۔ تو یہ جو الف یا حمزہ کا جو اضافہ ہوتا ہے کسی صفت کے ساتھ تو وہ اس کو جو ہے سپرلیٹو ڈگری میں لے جاتا ہے، یعنی تیسرے درجے میں سب سے بہتر، ہم کہتے ہیں نا بہتر اچھا بہتر سب سے بہتر، وہ سب سے بہتر والا درجہ جو ہوتا ہے سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے۔ عملہ یہ واحد ہے، اس کا جمع ہوتا ہے اعمال۔ تو آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے کون اچھا ہے، یعنی ایوکم احسن عملہ میں ہم کیا دیکھیں گے، اپنے اعمال کو دیکھیں گے کہ نماز کون اچھی پڑھتا ہے، گھروں میں کون اچھا ہے، آفس میں کون اچھا ہے، انفرادی کاموں نماز روزہ اور اذکار میں، اجتماعی کاموں میں یعنی امت کی جو ہے اصلاح دعوت امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں کون اچھا ہے۔ یہ چیزیں ہم دیکھیں گے کہ ایک اپنے اندر اور معاشرے کے اندر کون ان میں بہتر ہے، اور یہاں اس کلاس میں کون اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کو بتانے کے لیے سب سے اچھا جو ہے عمل کیا ہے، سیکھنے کی کوشش ہے۔ آپ دین کو جتنا سیکھیں گے اتنے اچھے ہوتے جائیں گے، اور دیکھنے والے اللہ کی ذات ہے۔ تو آئیے آگے چلنے سے پہلے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ آپ میں سے کوئی کر دے۔ ایکم احسن عملا، جی میں کر دوں؟ کر دیجیے پاپا۔ ایوکم کون تم میں سے احسن بہتر ہوگا عمل عمل کے لحاظ، ایوکم احسن عملہ تم میں سے کون بہتر ہے، سب سے زیادہ اچھا عمل کرنے والا، جو بھی آپ کون آئیے تم اس میں کے سے سوال اچھا جواب عمل لیتے ہیں۔ احسن کا ترجمہ کیجئے، اچھا بہترین کام عمل، ABCD۔ احسن بہتر، حمزہ لگ گیا، بہترین۔ بہتر بہتر نیات کا بہتر واحد ہے نوا، نیتن، نیتن، نیتین، ABCD۔ سی نیت، نیت نیات۔ ایوکم کے معنی بتائیے، تم میں بہترین، تم میں کون، تم میں ایک، تم میں سے کوئی نہیں، ABCD۔ ایوکم بی تم میں کون، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ وہ دیکھے کہ کون ہے بہتر عمل میں، دولت میں، غربت میں، صحت میں، ABCD۔ یہ بہتر عمل، اللہ ہمیں ثواب دے گا کے مطابق ایک سے زائد جو آپ کا انتخاب کیجئے، ہماری نیتوں، ہمارے خاندان، ہماری کوششوں، ہمارے ناموں، ABCD۔ اے اور سی، گڈ۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا یہ دیکھنے کے لیے کون بہترین ہے، ایک سے زائد جو آپ کا انتخاب کیجئے، انفرادی کاموں میں، سماجی کاموں میں، نماز میں، سیکھنے میں، ABCD۔ چاروں، جی مسابقت کا جذبہ کیا ہے، آپ نیت کر لیں، دعا کر لیں، اس کے بعد اصل کام جو ہے قلم سے شروع ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر آپ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ مقابلے کے لیے تیار ہیں تو آپ نے قلم احتیاط ہے، اپنا قلم کا احتیاط جو ہے وہ قلم ہے، قلم کو سنبھالیں اور لکھنا شروع۔ یاد رکھیے شیطان اپنے ساز و سامان کے ساتھ لیس ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا ہے۔ شیطان انگاروں پر لوٹ رہا ہے، وہ اپنی پوری کوشش کرے گا کہ آپ کو روکے۔ یاد رکھیے شیطان بہت تجربہ کار ہے، لیکن آپ کو اللہ کی مدد حاصل ہے۔ شیطان تیار ہے تو فرشتے بھی تیار ہیں آپ کے اعمال لکھنے کے لیے۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہم کو ہمیشہ اس کام کے لیے تیار رکھے، پورا قرآن سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی۔ تو آگے چلنے سے پہلے اس سبق کے بارے میں اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے، ورنہ پھر ہم دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम सय्यदुल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस हिस्सा दोम ग्रामर में हम जो है देखेंगे कि नए जो है वो 10 अल्फाज और उसके साथ जो है हमने कुछ कवायद देखते हैं, लेकिन उससे पहले आइए टीपीआई की एक मशक कर लेते हैं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सबके साथ मिलकर कीजिए। यानी आपने अपनी तमाम हिस्सों को इस्तेमाल करना है। ये जितनी भी हिस्से हैं इनके दिमाग के अंदर अलग अलग मरकज हैं। जब आप एक चीज को मुख्तलिफ मरकज के अंदर जखीरा करते हैं, पहुंचाते हैं, वो ज्यादा अच्छा याद होता है, ज्यादा देर पर याद होता है और जल्दी याद आता है। तो आइए, पिछले सबक में हमने ये देखा था फे एंड लाम जो है ये 3 हरूफ हैं, इनसे हमने माजी का बनाया था फ़ाअला, फिर हमने इनके साथ कुछ इजाफा करके बनाया था यफ़अलु मुदारिर, फिर हमने इसमें इजाफा करके जो है तब्दील करके अमर बनाया था इफ़अल, और फिर इससे जो हमने ला तफ़अलु नहीं का सीगा बनाया, और फिर हमने इससे ये देखा कि फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल बनते हैं। ये हम पिछले असबाक में कर चुके हैं। आइए आज के सबक में देखते हैं। ये देखिए फ़ाअला से क्या होता है, फ़ाइल, मफ़ूल, फ़ेल। ये बोलने में ऐसे होते हैं, बाज़ औक़ात लिखे भी ऐसे जाते हैं, लेकिन ये याद रखें इन सब के ऊपर क्या है, तन्वीन है। फ़ाइलुन, मफ़ूलुन, फ़ेलुन। फ़ाइल करने वाला, मफ़ूल जिस पर असर पड़ा, फ़ेल काम का करना। कल किसी ने पूछा था कि ये जी फ़ाअला और फ़अल, ये जो है इसमें हमें फ़र्क नहीं पता चलता। याद रखें जब भी एग्जाम में क्विज में आता है तो इसके ऊपर जो है वो तन्वीन लिखी होती है, क्योंकि वो छोटी सी होती है, आपको नजर नहीं आती, आप उसे जो है जूम करके देखें तो आपको वो तन्वीन नजर आएगी। याद रखें जब फ़ाअला फ़े लाम के आखिर में तन्वीन आ रही है तो समझ लें ये इसम है, क्योंकि हमने इसम की पहचान में तन्वीन देखा था। तो आइए इसके कुछ सवाल जवाब हैं। वयंसुरुल्लाह के मायने बताइए। उन सब ने मदद की अल्लाह की, और वो सब मदद करेंगे अल्लाह की, और वो सब मदद करते हैं अल्लाह की, और वो सब मदद करते हैं अल्लाह की। ABCD। वयंसुरूना जमा का सीगा मुदारे। यस बी और डी जी। यामलूना सय्यात का तर्जमा कीजिए। वो सब करते हैं बुराइयां, वो करता है बुराइयां, उन सब ने की बुराइयां, वो सब करेंगे बुराइयां। ABCD। यामलूना जमा का सीगा, सय्यातुन जमा का सीगा। जी वो बुरा बारे में वो करते हैं बुराइयां, वो सब करेंगे बुराइयां। ए और डी। ठीक। कैफा तामलूना के मायने बताइए। कैसे तुम सब ने अमल किया, कैसे तुम सब अमल करोगे, कैसे तुम सब अमल करते हो, कैसे तुम सब ने अमल किया। ABCD। जी ऐसे तुम सब बी और सी, कैसे तुम सब अमल अमल करोगे, कैसे तुम सब। ठीक। आइए आज का सबक लेते हैं। उसमें कुछ और अफ़आल हम देखेंगे और उनका जो है फाइल, मफूल, फेल जो है वो बनाएंगे। मसलन लफ्ज है ज़करा। ज़करा से क्या आएगा, ज़ाकिर जाकिर, याद करने वाला, मज़कूर जिसको याद किया गया, जिक्र याद करना। चले जी आप में से कोई एक बार इसे दोहराए। यस सिस्टर नहीं, आपने अनम्यूट किया हुआ है, आप दोहरा दीजिए। जाकिर याद करने वाला, फाइल है ये। मज़कूर मफूल है ये जिसको याद किया गया। जिक्र ये फेल है, यानी याद करना इसम है। चले आपने भी अनम्यूट किया हुआ है, आप भी इसी को एक बार दोहरा दीजिए। जाकिर याद करने वाला, मज़कूर जिसको याद किया गया, जिक्र याद करना। जज़ाकल्लाह खैर। ये देखिए एक लफ्ज है अबदा। अबदा उसने इबादत की, उससे अबदा से जो है आबिद, माबूद, माबूद, इबादा। अब आबिद, माबूद, इबादा, ये जो है फाइल, मफूल, फेल बनते हैं। आइए इसके सवाल जवाब लेते हैं। हल अंत जाकिर, क्या जवाब होगा। नाम माना जाकिर, नाम आना जाकिर। आना जाकिर। और
अगर जमा हो हल अंतुम जाकिरून, तब क्या नाम जवाब होगा? नाम नहनु ज़ाकिरून। नाम नानू जाकिर। तो अगला जो है लफ्ज है अबदा, इससे फाइल मफूल क्या बनेंगे? आबिद इबादत करने वाला, माबूद जिसकी इबादत की जाए, इबादत करना। चले आप में से कोई इसे दोहरा दे एक बार। यस, कौन दोहराना चाहेगा? चले दोहरा दे, आप ही दोहरा दे एक दफा, तो आप दोहरा दे, फिर मैं किसी को पकड़ता हूँ। आबिद इबादत करने वाला, माबूद जिसकी की इबादत की गई, इबादत करना। जज़ाकल्लाह खैर। चले जी मिसिस इजाद, आप भी दोहराइए। आबिद इबादत करने वाला, माबूद जिसकी इबादत की गई, इबादत करना। जज़ाकल्लाह खैर। ये देखिए हमने देखा था आबादा, आबादा से क्या है? आबिद, माबूद, इबादा होता था। अब फिर कुछ सवाल आते हैं। हल अंता आबिद, नाम आना आबिद। हल अंतुम आबिदूना, नाम नाम नहनु आबिदून। आबिद। अंता का आना से अंतुम जो है वो नाहनू से जो है जवाब देते हैं। हल जिक्र इबादा, ये एक नया सवाल आ गया। हल जिक्र इबादा, हाँ जी, नाम हम जिक्र बात। जी हाँ, ठीक, आपने दुरुस्त फरमाया। ये यही रहेगा, सिर्फ नाम हल की जगह जो है नाम का इजाफा हो जाएगा। नाम अज़िक्र इबादा, हाँ जिक्र जो है वो इबादत है। सवाल है वला अंतुम आबिदून के मायने बताइए। और ना तुम इबादत करने वाले हो, और ना वो सब इबादत करने वाले, और ना मैं इबादत करने वाला हूँ, और ना तुम सब इबादत करने वाले हो। ABCD। अंतुम और आबिदून, ना वो सब इबादत करने वाले हैं। और ना तुम सब इबादत करने वाले हो। आबिद। अच्छा, हल अंतुम आबिदूना का जवाब दीजिए। नाम आना आबिदून, नाम नाहनु आबिद, नाम नाहनु आबिदूना, नाम आना सी आबिद। ABCD। सी नाम नहनु सी, आबिदून। जी। आइए अगला फेल है दराबा, उसने मारा। इससे फाइल बनेगा दारिब, मारने वाला, मदरूब जिसको मारा गया, दर्ब मारना। चलें जी दोहराएं। हाँ जी शहनाज, सिस्टर शहनाज आपने अनम्यूट किया हुआ है, चलिए आप दोहरा दीजिए। दारिब मारने वाला, मदरूब जिसको मारा गया, दरब मारना। जी मिसेस जाज आपने हैंड रेज किया हुआ है, चलिए आप भी दोहरा दीजिए। दारिब मारने वाला, मदरूब जिसको मारा गया, दर्ब मारना। हाँ जी आप भी दोहराओ। जारिब मारने वाला, मजरूब जिसको मारा गया, ज़रब मारना। हाँ जी सिस्टर नाहिद आप रह गई है, चलिए आप भी दोहराएं। दारिब मारने वाला, मदरूब जिसको मारा गया, दरब मारना। जज़ाकल्लाह खैर। तो ये था दरबा, उसने मारा, दारिब मारने वाला, मदरूब जिसको मारा गया, दरब मारना। इसके सवाल है हल हुआ दारिब। हाँ जी क्या जवाब होगा? हल हुआ दारिब, नाम होगा दारिब। नाम नाम हुआ हम जिसमें आ गया, बस आंखें बंद करके उसी जवाब को लौटा दे, वो हुआ हम के साथ। हल हम दारिबून, नाम हम दारिबून। नाम हम दारिबून। आइए इसके सवाल जवाब देते हैं। हल हम दारिबूना, नाम हुआ दारिब, नाम डी है, नाम हम दारिबून। डी डी। हाँ वही हल दारिबून, वही नाम के साथ जवाब में आ गया। अगला है सामिया का फेल। इसके जो है फाइल मफूल देखते हैं। ये क्या? अच्छा आलिम आ गया। आलिम जाने वाला, मालूम जिसको जाना गया, इल्म जानना। ये समिया के वजन पे है, ये समिया के वजन पे होता है आलिमा। तो आलिम, मालूम, इल्म की दुराई है। कौन दुराना चाहेगा पहले? चले आलिम, आप अनम्यूट है, आप पहले दुराएंगे फिर नहीं दुराएगी। चले आलिम जानने वाला, मालूम जिसको जाना गया, इल्म जानना। जी सिस्टर नाहिद। आलिम जानने वाला, मालूम जिसको जाना गया, इल्म जानना।
اللہ خیر. آئیے اس کے سوال جواب لیتے ہیں. سامعہ اس نے سنا، سامع سننے والا، مسموع جس کو سنا گیا، سمع سننا. حل انت سامع نام نام آنا. انسان حل انتم سامعون نام نام نحن سامع. نحن انوسان اس کے سوال جواب ہے. حل انت سامع نام نحن سامعون نام آنا سامعون نام نحن سامع نام آنا سامع. نام یہ بھی سی نام سی نام نام انسان نام اناسان ڈی. عالمہ. یہ عالم جاننے والا، معلوم جس کو جانا گیا ہے، علم بھی ہم نے کر لیا ہے. حل انتم عالمون یہ بھی ہم نے کر لیا ہے. اب عاملہ آ گیا. یہ سامعہ کے وزن پہ دوسرا لفظ ہے عاملہ. عامل عامل عمل کرنے والا، عمل کرنے معمول والا. جس پر عمل کیا گیا، عمل کرنا. چلیں جی دہرائیں. عامل ہاں جی عمل کرنے والا، معمول جس پر عمل کیا گیا، عمل کرنا. یہ وہ جو نہیں ہوتے ہیں عامل معمول عمل کرنے والے، یہ جو جادو ٹونے کرنے والے جو ہے نا، وہ معمول اور عمل جو ہے یہ عمل یہ عامل ہوتا ہے. تو یہاں پہ عمل کرنے والا. نارملی اردو میں ہم اس سے مراد لیتے ہیں وہ جو کسی پہ جادو ٹونے کے عمل وغیرہ کرتے ہیں وہ عامل ہوتا ہے، جسے پہ کیا جاتا ہے وہ معمول ہوتا ہے. اور مؤنث کی سیغے آج لیتے ہیں. ہم نے یہ پڑھا تھا ہوا فعل اس نے کیا، تو مؤنث کے لیے کیا ہوگا؟ کیا کیا یہ تو ہے، آگے فعل کیا لگاؤ؟ فعلت فعلت فعلت. یہ دیکھیں فعل جو ہے یہ پورے کا پورا ایسے رہے گا، آخر میں تے لگ جائیں گی. تو اسے کیسے کہ ہوا فعل یہاں تک پڑھا تھا، یا فعلت. فعلت یعنی وہی لفظ ہے، فعل سے فعلت، اس کو تلفظ اس طرح کریں. اسی طرح ایک اور ہے ہوا یفعلو. اب یہ مضارع آ گیا. ہوا یفعلو یہ کیا ہوگا؟ کیا یا فلتا یا تف 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 یا تفعلو. تف یہ اس کا تھوڑا سا مختلف ہے. وہ یفعلو سے نہیں بن جاتا. ماضی تو اسی طرح بنتا ہے سسٹر. فعل ہے تو فعلت ہوگا، جعل ہے تو جعلت ہوگا، سمع تو سمعت ہوگا، ضرب ہے تو ضربت ہو جائے گا. ماضی میں ٹھیک ہے. مضارع میں اس کا جو ہے تا کے ساتھ آتا ہے، یعنی اس کی جو علامت مضارع ہے مؤنث کا وہ تے ہے. تو ہوا یفعل یا تفعل، ہوا یفعل یا تفعل، ہوا جعل یجعل یا تفعل، ہوا یضرب یا تضرب. یہ تے کے ساتھ اس کا ہوتا ہے. تو آئیے اس کے سیغے دیکھتے ہیں. فعل تو کیا ہوگا؟ فعلت. اور مضارع میں کیا ہوگا؟ یفعل. تو کیا ہوگا مضارع میں؟ تف تف تفعل. اب اس پہ چلتے ہوئے جو ہے اب ہم ان کی تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارا پکا ہو جائے. فتح فتحت، نصر نصرت، ضربا ضربت، سمع سمعت. جی اب ان چاروں کو کوئی آپ میں سے ایک بار دہرا دے. سسٹر نائٹ ابتدا آپ کیجیے. فتح فتحت، نصر نصرت، ضرب ضربت، سمع سمعت. اور اگر میں کہوں شکرا شکرت ذکرا ذکرت ذکرت. ہو جائے گا. اسی طریقے سے جو ہے کوئی بھی آ جائے آپ کے پاس، مثال کے طور پہ نصر آ گیا، نصرا نصرت. تو اس طریقے سے آپ یہ بنا سکتے ہیں. اب اس کا مضارع لیتے ہیں. دیکھیں مضارع میں کیا ہو گیا؟ یفتح تفتح، ینصر تنصر، تنصر، یضرب تضرب، یسمع تسمع. چلیں ہاں جی یہ فرزان محمد فرزان چلیں آپ دہرائیے سسٹر. هي تفتح، هي تنصر، هي تضرب، هي تسمع تسمع. اس کو ایسے کرتے ہوا یفتح یا تفتح، ہوا ینصر یا تنصر، ہوا یضرب یا تضرب، ہوا یسمع یا تسمع. اب دوبارہ کرائیے آپ هو دوبارہ کرائیے. هو يفتح، هي تفتح،
हुवा यंसुरु हिया तंसुरु हुवा यजरिबु हिया तजरिबु हुवा यस्माउ हिया तस्माउ. हाँ चले सिस्टर वो मिसेज इजाज आपने हैंड रेज किया था, अभी एक बार दोहराइए इसे, मुदारे को दोहरा दीजिए. हुवा यफ्ताहु हिया तफ्ताहु हुवा यंसुरु हिया तंसुरु हुवा यद्रिबु हिया तद्रिबु हुवा यस्माउ हिया तस्माउ. हुवा यशकरू तो क्या होगा? हुवा यशकरू तश्तरू हिया क्या तशकुरु तश्तरू हुवा यशकरू हिया या यश तस्करू तस्करू या या तस्करू. या तस्करू. ते लगनी है, हिया के साथ ते लगनी है. ये इसीलिए मैं आपको बदल बदल के दे रहा हूँ कि आपके ज़हन में बैठे. मसलन हुवा याबुदू, हिया ताबुदु 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 ते लग जाएगी. हुवा यज़कुरू, हिया तस्करू तस्कुरु हो जाएगा. हुवा आमिलू, हुवा यामलू, हिया तामली. तामुल हो जाएगा. तो ये आपको याद होना चाहिए कि माजी में ते आखिर में लगा देते हैं, इसमें शुरू में लगा देते हैं. मोनिस के लिए ते जो है इसकी इलामत है, मोनिस की इलामत ते है, इसलिए जो है ये यहाँ पे ये नहीं लगाते, ये ते लगाते हैं. देखिए यहाँ ते की इलामत से हमने इसको लिखा, फताहा फताहत, नसरा नसारत, दराबा दराबत, समिया समत. ते इसकी इलामत थी मोनिस. तो यहाँ मुदारे में भी ते ही बरकरार रहती है. यहाँ माजी में आखिर में आ रही थी, मुदारे में शुरू में आ जाती है. यफ्ताहु तफ्ताहु, यंसुरु तंसुरु, यद्रिबु तद्रिबु, यस्मउ तस्मउ. अब ये आपको पता चला ये ते कहाँ से आ रही. ये वही ते है जो हमने जब माजी में लगाई थी तो आपने कोई इतराज ही नहीं किया, चुप करके मान लिया. जब मैंने कहा जी फतह के बाद ते लगा देते हैं, आपने सवाल ही नहीं किया, आपने कहा बिल्कुल ठीक है जी, फतह फतहत, नसरा नसरत, दरबा दरबत. और जब मैंने कहा यफ्ताहु तफ्ताहु तो आपका ज़हन एकदम अटक गया. यहाँ तो ये आना थी. वो भाई ये कैसे है, इलामत जो है या की है ही ते, चाहे वो माजी में इस्तेमाल कर चाहे मुजारे में. फर्क ये है कि माजी में आखिर में आएगी, मुजारे में शुरू हो जाएगी. तो इसलिए ये इस पे परेशान ना हो कि ये ते कहाँ से आ गई. ते असल में मुदारत वो जो है इलामत निसा यानी मोनिस की इलामत है. चलिए आइए फाला का मोनिस बताइए. तफअलु, फाअला, फाअलत, फाइलात, ABCD. जी फाला का मोनिस सी, फाअलत ते सिर्फ इजाफा होगा. तद्रिबू का तर्जमा कीजिए. तुम मारते हो, तो मारना, वो मारती है, वो मारता है, ABCD. तद्रिबू, तुम इसके दो मायने होते हैं. तद्रिबू तू मारता है या तुम मारते हो, और वो मारती है. ये मोनिस के लिए भी यही इस्तेमाल होता है और मुखातिब के लिए, वाहिद के लिए भी यही होता है. हिया तफअलु के मानी बताए. तुम करते हो, उस औरत ने किया, वो करेगी, वो करती है, ABCD. जी या तफअलु वो करती है, वो करेगी, COD. हाँ दोनों है. ताल्लमा का तर्जमा कीजिए. उसने सीखा, वो जानती है, तुम जानोगे, वो जानेगी, ABCD. ताल्लमा तालीम. वो जानती है, वो जानेगी. हुआ यामलू का मुअन्निस बताइए. यामलू का या या यामल, या तामलू. या आमिल. बी बी जी बी ते लगेंगे इलामतें. अच्छा ये हमारा बुनियादी टेबल है, इसको जो है आपने दोहराते रहना है. इसी के ऊपर तमाम अफ़ाल जो आपने QC1 में सीखे हैं वो इसी टेबल के ऊपर चलते हैं. फ़ाला उसने किया, फ़ालू उन सब ने किया, फ़ालता आपने किया, फ़ालतू मैंने किया, फ़ालतुम आप सब ने किया, फ़ालना हम सब ने किया. यफ़अलू वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलू आप करते हैं, अफ़अलू मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलू हम सब करते हैं. इफ़अल करो, इफ़अलू इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो. फ़ाइलुन करने वाला, मफ़ऊलुन जिस पे किया गया, फ़ेल फ़ाइल. हुवा फ़अलत हिया, हुआ फ़अला हिया फ़अलत, हुआ यफ़अलु हिया तफ़अलु. ये जो
मुअन्नस के सिरे होते हैं, ये आखिर में हुआ और हिया के साथ दोहराते हैं ताकि वो ज़हन में पक्के हो जाए। हुआ फ़अला, हिया फ़अलत, हुआ यफ़अलु, हिया तफ़अलु। तो आइए आप में से कोई एक बार इस टेबल को दोहरा दे, वैसे आगे बहुत टेबल है, मेरा ख्याल है सबको मौका मिलेगा। चलें जी, फरजान सिस्टर आप कराइए। फेल माजी का फ़ाला, फ़ालू, फ़ालता, फ़ालतू, फ़ालतुम, फ़ालना, फ़ालत, हिया फ़ालत, यफ़लू, यफ़लूना, तफ़लू, अफ़लू, तफ़लूना, नफ़लू, हिया तफ़लू, इफ़अल, इफ़लू, ला तफ़ल, ला तफ़लू, फ़ाइल, मफ़ूल, फ़ेल। जज़ाकल्लाह खैरा। अब आ गया फतहा का टेबल। हाँ जी, ये कौन कराएगा? चलें जी सिस्टर नाइन, आप ये पूरा टेबल करा दीजिए। फतहा, फतहू, फतहत, फतहतुम, फतहतुम, फतहना, फतहत, यफ्तहू, यफ्तहूना, तफ्तहू, अफ्तहू, तफ्तहूना, नफ्तहू, तफ्तहू, इफ्ता, इफ्तहू, ला तफ्ता, ला तफ्तहू, फातिहुन, मफ्तूहुन, फतहू। गुड। इसका आसान तरीका ये होता है टेबल का, मैं आपको एक बार नमूने के लिए कर देता हूँ क्योंकि आगे बहुत सारे टेबल मुझे लग रहा आ रहे हैं, तो आप सबको उसी तरीके से पहले माजी का दोहराते हैं ऐसे, फतहा यफ्तहू, फतहत, फतहतू, फतहतुम, फतहना, यफ्तहू, यफ्तहूना, तफ्तहू, अफ्तहू, तफ्तहूना, नफ्तहू, इफ्त, इफ्त, ला तफ्त, ला तफ्तहू, फातिहुन, मफ्तूहुन, फतह। और फिर कहते हैं हुआ फतहा या फतहत, हुआ यफ्तहू या तफ्तहू। ये देखिए इसका कलर जो है वो पिंक किया हुआ है, यानी इसको हम आखिर में रखते हैं और इसको मुनफरिद अलहदा से करते हैं। अलहदा से करते हैं हुआ फतहा, यानी मुदारे की जो पहली वो है, पहला सीगा उसे दोहराते हैं, हुआ फतहा या फतहत। फिर मुदारे का करते हैं हुआ यफ्तहू या तफ्तहू। तो आइए अगला टेबल है नसरा, कौन कराना चाहेगा जी? चलें सिस्टर, कौन सी सिस्टर कराएगी? नहीं, मैं आप करा कराना दूं। चाहती हैं? आपको सिस्टर आखिर में दूंगा एक मौका। चले नाहिद। नसरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना, नसरत, हुआ नसरा, हिया नसरत, यंसुरु, यंसुरूना, तंसुर, अंसुर, तंसुरूना, नंसुर, हुआ यंसुरु, हिया तंसुर, उनसुर, उनसुरु, ला तंसुर, ला तंसुरु, नासिरुन, मंसूरुन, नसर। जज़ाकल्लाह खैरा। चले जी आगे आ गया दराबा का। हाँ जी, दराबा का कौन कराएगा? कोई नया बंदा ढूंढते बनते हैं आज। हाँ जी, सिद्रा खुशी आप कराए। दराबा का टेबल आप कराइए पूरा टेबल। दरबू, दरबा, दरबू, दरबता, दरबतु, दरबतुम, दरबना, दरबत, यद्रिबु, यद्रिबूना, तद्रिबु, अद्रिबु, तद्रिबूना, नद्रिबु, तद्रिबु, इद्रिब, इद्रिबु, ला तद्रिब, ला तद्रिबु, दारिबुन, मदरूबुन, दर्ब। जज़ाकल्लाह खैरा। अगला है जी सामिया। हाँ जी सुफैया, आप जो है ये कराइए। सामिया अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अच्छा, उनसे नहीं हो रहा है। चले कोई और सिस्टर्स में से करा दे। चले समिया, समीउ, समेता, समीतु, समीतुम, समेना, यस्मउ, यस्मउना, तस्मउ, तस्मउना, नस्मउ, इस्मा, इस्मउ, ला तस्मउ, ला तस्मउ, सामे, मस्मुन, सम।
चले सिस्टर मिसेज इजाज, आप जो पूरा टेबल ये समय का करा दीजिए। चले वो भी अनम्यूट नहीं हो रही है तो हाँ जी हाँ आ जाइए सिस्टर फरजान, यस राइट। सामिया सामिउ, समीता समीतु, समीतुम समीना, हिया समीअत, यस्माउ यस्माउना, तस्माउ अस्माउ, तस्माउना नस्माउ, हिया तस्माउ, अस्मा अस्माउ, ला तस्मा ला तस्माउ, सामे मस्मू समे। इस टेबल को थोड़ा सा तवज्जो से लीजिए, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। इसके अंदर चीज़ें चूंकि ज़ेर के साथ माजी में चलती है तो तलफ़ुज़ में थोड़ी सी गड़बड़ होती है। आप गौर से सुन लीजिए एक दफ़ा मुझसे। समिया समेउ, समेता समेतु, समेतु समेना, यस्मऊ यस्मऊना, तस्मऊ अस्मऊ, तस्मऊना नस्मऊ, इस्मा इस्मा मा इस्मा जेर के साथ, इस्माऊ ला तस्मा मा ला ला तस्माऊ, सामेउन मस्मून समे, समे, व समिया या समिअत, व यस्मऊ या तस्मऊ। माओ तो ये जो इसके जेर जबर पेश है ये थोड़े से एहतियात से करने पड़ती हैं और अक्सर गलती ये इस्मा को समा कह देते हैं हम। नहीं, ये मुतारे में भी जो है इसका फर्क पड़ता है तलफ़ुज़ में और ये अमर में भी पड़ता है। और माजी में तो वैसे ही शुरू में चूंकि ये जेर का आ जाता है, ये सिर्फ समाअत के बाब में आता है, इसलिए जो है इसको तवज्जो से करना पड़ता है। चलिए खैर है, आगे चलते हैं। अगला है हाँ जी मुदारे, फेल मुदारे की प्रैक्टिस हमने करनी है। यनसुरू, इसके साथ हम का मिलाए, का के मैंने होता है तू, तो ये क्या बनेगा? यनसुरू वो मदद करता है, क्या? यनसुरू का तेरी। अब अगला लफ्ज है यनसुरूना, वो सब मदद करते हैं, इसके साथ का मिलाया, लफ्ज बन गया यनसुरूना का। क्या तर्जुमा होगा? वो सब आपकी मदद करते हैं। कौन? यनसुरूना, वो सब मदद करते हैं। वो सब असल फिर जो है ये देखिए अलहदा मैंने रखा है आपके सामने, यनसुरूना वो सब मदद करते हैं, और आगे का या तेरी, तो क्या बनेगा तर्जुमा? वो सब मदद करते हैं तेरी। तनसुरू, तनसुरू ये सामने का सीगा है, इसके साथ काफ मिलाया, ये बना तनसुरू का। अब क्या तर्जुमा होगा? तुम मदद करते हो। हाँ, तू मदद करता है इसकी तेरी, यानी तू अपनी तेरी। मदद कर। अच्छा, अंसुरू और इसके साथ का मिलाया, अंसुरू का मैं अब मदद तक क्या मैं होगा? मैं मदद मदद करती हूँ तुम्हारी, तेरी। मैं मदद करता हूँ तेरी या तुम्हारी। तनसुरूना के साथ का मिलाए तुम तो सब क्या मदद बनेगा? करते हो, तनसुरू का। तुम क्या सब तर्जुमा मदद होगा? करते हो तेरी, तुम सब मदद करते हो तुम्हारी, तेरी, तेरी। हाँ। उसकी। ननसुरू उसके साथ हम का सब मिलाए, हम सब मदद करते हैं तेरी। हाँ। अच्छा, आइए अब अगला इसके साथ हम मिलाते हैं। देखे या मुतकल्लिम यानी मैं कि मैंने होता है। यंसुरू नी, यंसुरूनी, इसमें ये नून के साथ मिला के वो बनाया मदद जाता करता है मेरी। है। हाँ, वो मदद करता है या करेगा मेरी। अब यंसुरूना के साथ या मिलाया तो ये बन सकता है वो सब मदद, यंसुरूनी। वो सब मदद करते हैं मेरी या करेंगे मेरी। तनसुरू के साथ या मुतकल्लिम मिलाया, ये बना आप मदद तनसुरूनी। करते हैं आप मेरी। मदद करते हैं मेरी। अंसुरू के साथ जो है या मुतकल्लिम मैं मिलाया, ये मदद बना करता हूँ अपनी अपनी। हाँ, मैं अपनी करता हूँ। वो होता है ना अपनी मदद। आप तनसुरूना के साथ या मुतकल्लिम मिलाया, ये बना तनसुरूनी। तुम सब मदद करते हो मेरी। हाँ, और अगर है ननसुरू और या के साथ ननसुरूनी, हम सब मदद करते हैं मेरी। मेरी। आइए इसका टेबल बनाते हैं। अबदा, अबदा, आबिद, माबूद,
इबादा। अब आबिद जो है इसका जमा हमने बनाना है, तो क्या बनेगा जमा आबिद का? वाव नून लगाएंगे आबिदून हो जाएगा, आबिदून, या नून आबिदून। लगाएंगे आबिदीन हो जाएगा। तो इसका आबिदूना और आबिदीन ये दो बनेंगे। अब माबूद है, जो माबूद का जो है जमा बना है वाव नून और या नून लगा के, क्या बनेगा? माबूदून माबिदीन। माबूदून मुआबिदीन। अच्छा, दरबा, दरबा से होता है दारिब मदरूब दरब। अब दारिब के जो है जमा बनाने वाव नून और या नून के साथ, क्या बनेगा दारिब से? दारिबून, दारिबून और दारिबीन। दारिबीन। दारिबून दारिबीन। और अगर मदरूब के साथ जमा बना है वाव नून या नून वाला, तब क्या बनेगा? मदरूब और मदरूबीन। मदरूबून, मदरूब, वाव नून लग गया, और मदरूबून, मदरूबून और मदरूबीन। और मदरूबीन। अब आगे आ गया सामिया। सामिया से जो है क्या होता है? सामे मशमू समा। अब इसका जमा बनाना है सामे का वाव नून और या नून से, तो क्या बनेगा? सामेऊन सामेऊन सामीन। 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 मशमू, इसका जमा बनाए मस्मून, मस्मूइन। गुड। आगे है आलिमा। आलिमा से होता है आलिम, इल्म, मालूम, मालूम और अल- इल्म। इल्म, अब इल्म, इसकी इल्म। जमा आलिम को बनाएंगे तो क्या बनेगा? आलिमून, आलिमून आलिमीन। आलिमीन। आलिमून आलिमीन, वाव नून और या नून लग गया। और मालूम के साथ वाव नून या नून लगाएं, क्या बनेगा? मालूमून मालूमीन। मालूमीन। क्या बात है जी, आप लोग तो मुझसे ज्यादा आगे चले गए हो, मुझे तो हसद होने लग गया। आमिला से होता है आमिल महमूद इल्म। हाँ जी, इसका जो है क्या होगा? वाव नून लगाएं तो आमिलून आमिलीन और मामूलून मामूलीन। तो ये जो है आपका क्या, ये उर्दू में तर्जमा कर दीजिए। इल्मुहा इंदा रब्बी, इल्मुहा इंदा रब्बी जी। का उस औरत का इल्म, उस औरत का यहाँ नहीं लिखा, ये हा मुअन्नस की होता है, यानी उस मुअन्नस का इल्म जो है मेरे रब के पास है, यानी उसका इल्म मेरे रब के पास है। ये अंडरस्टूड है कि यहाँ ये आया कोई मुअन्नस है, वो कोई भी चीज मुअन्नस हो सकती। ली अमली वलकुम अमालुकुम, ली अमली वलकुम अमालुकुम। मेरे ली लिए, मेरे लिए, मेरा अमल अमली मेरे मेरा लिए अमल, और तुम्हारा अमल लकुम तुम्हारे तुम्हारे लिए। लिए तुम्हारा अमल, मेरे लिए मेरा अमल और आपके लिए आपका अमल। वन्नहनु लहु आबिदून, हम वन्नहनु लहु और हम उसकी इबादत करते हैं। और हम सब उसकी इबादत करते हैं या उसकी इबादत किए। फामिल फामिल आमिलून। हाँ जी, बस अमल करो। आप अमल करो, बेशक हम अमल करने वाले हैं। वज़ाकिरून अल्लाह कसीरन। हाँ जी, और वो सब जिक्र और जिक्र करने वाले अल्लाह का बहुत ज्यादा, ज़ाकिरून जमा। आइए इसका जो है अरबी बनाए। हम सब सुनने वाले हैं जी। हम सब नानो समेना नहनु सामिऊन, सामेऊन। हम सब अमल करने वाले हैं। नानो नानु आमिलून। आमिलून, आमिलून। अल्लाह जानने वाला है। अल्लाह आलिमुन। आलिमून। नमाज एक इबादत है। अस्सलातु सलातु इबादत, दुआ सुनी हुई है। हाँ जी, अद्दुआ मस्मून, सुनी हुई, सामी मस्मून। अरबी में जवाब दीजिए। हल अल्लाहु मअबूदुना, या अल्लाह हमारा माबूद है। नाम अल्लाह मअबूदुना। नाम हल अल्लाह। हुम आलिमून, क्या वो जानने वाले हैं? हुम आ गया जवाब, हुम में आंखें बंद नाम हम करके आलिम। हल अंता आमिल खैरन, क्या तुम अच्छा नाम अना, करते हो? नाम अंतु अना आमिल, अना आमिल। आपका जवाब आना आ गया, बाकी सवाल वही है। नाम आना आमिल खैरन। हल इंदकुम मिन इल्म, इंदकुम कुम आया, कुम का चीज़ा कहाँ जाएगा? नाम इंदना नाम इंदी, इंदना। अच्छा कुम्मा, इंदिना। होगा, होगा ये जबकि इंदा का होता, यानी हाँ, तेरा। यहाँ कुम जमा का सीधा है, तो सही, इसलिए ना इंदिना, आएगा जो जमा का है। इंदिना, हल सही। हाजल अमलु सालिह, हल हाजल अमलु सालिह, क्या ये अमल नेक है?
नाम नाम हाजिल अमल हाजिल सालिह, अमल नाम ये नेक अमल है। तो आइए आज का नुक्ता तालीम देखते हैं कि हमें कितना याद रहता है। जो कुछ हम पढ़ते हैं उसका सिर्फ 25% याद रहता है। मसलन अगर आपने 100 चीजें पढ़ी हैं तो सिर्फ 25 याद रहेंगी पढ़ने से, और इसके मुकाबले में अगर जो कुछ हम सुनते हैं उसका 35% याद रह जाता है। मतलब 100 चीजें अगर सुनी थी तो उसके 35 जो है उसमें से याद होंगे, और जो कुछ हम देखते हैं उसका 50% याद रहता है। यानी देखने से याददाश्त ज्यादा होती है। मसलन आप कोई ड्रामा देखते हैं, मूवी देखते हैं, कोई क्लिप देखते हैं तो वो काफी ज्यादा जो है उसका हिस्सा याद रह जाता है। और जो हम कहते हैं यानी दूसरों को कहते हैं, बोलते हैं, उसका 60% याद होता है। तो और जो हम करते हैं यानी अमली तौर पर किसी चीज को किया जाए तो उसका 75% याद होता है। और अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा सबसे ज्यादा हो तो हम क्या करें, हम पढ़ें, सुने, देखें, बोले और करें। यानी ये जो TPI हम करते हैं उनके जरिए या दूसरों को बताएं, तब जो है ये याद कितना होगा, तब जाके 95% याद होगा। यानी अगर आप सिर्फ पढ़ते हैं तो सिर्फ 25% याद होगा। अगर आप सुनते भी हैं पढ़ने के साथ साथ, यानी जोर से पढ़ रहे हैं कि आपको सुनाई भी दे रहा है आप क्या पढ़ रहे हैं, तो 35% याद। और अगर आप गौर से देख भी रहे हैं किसी चीज को और पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तब जो 50%। और जो आप दूसरों को बता रहे हैं वो 60%। और अगर आप उसी काम या उसी चीज को अमली तौर पे करें तो 75। और अगर आप इन सबको आपस में मिला के करें, यानी सुने भी, बोले भी, देखें भी, बताएं भी, करें भी, तो फिर 95% याद होता है। तो कुरान कितना याद रहता है? कुरान सीखने के लिए हमें TPI का और क्लास में TPS का जो इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी 2-2 की जोड़ियां बनाकर एक दूसरे को पढ़ाएं। यानी आपके साथ जो है प्रैक्टिस के लिए जो है क्या कोई साथी होना चाहिए, कंपेनियन होना चाहिए। और साथ होमवर्क करें। साथ होमवर्क क्या है? यानी एक तो ये है कि मसहफ जो है उससे कम से कम 5 मिनट जो है ना रोजाना देख के पढ़ना, और 5 मिनट जो है इसको बंद करके जो कुछ याद है या जो कुछ सीखा है या आता है उसको दोहराना। फिर दूसरा होमवर्क ये है कि आपकी ये जो टेक्स्ट बुक है इसमें से भी इसी तरह 5 से 10 मिनट रोजाना जो है पढ़ना, और फिर जो है उसके लिखने का जो काम है होमवर्क या वर्क बुक है वो करें। और इसके अलावा अपने साथ किसी दूसरे को मिलाएं, किसी साथी को चुने या किसी के साथ शरीक हो स्टडी में। या जो है आजकल तो बहुत एडवांस हो गया है, व्हाट्सएप है, जूम है, दूसरी चीजें, आप घर बैठे बड़ी दूर दराज है किसी के साथ जो है वो पढ़ाई मुश्तरका कर सकते हैं। तो ये आपके करने के। और याद रखिए कि अल्लाह ताला ने जो है दीन में आसानी रखी है, लेकिन मेहनत करनी जरूरी है। और आपने आज जो है 232 अल्फाज सीखे, जो हमारा टारगेट था। हमने पहली क्लास में कहा था कि इस कोर्स में हम 232 अल्फाज सीखेंगे, जो कुरान पाक में तकरीबन जो है 41,111 मरतबा आए हैं। तो आइए आज हमने अपना ये जो है कोर्स का तकरीबन सारा हिस्सा कवर कर लिया है। कल की क्लास में इंशाल्लाह हम ये देखेंगे हमें कितना आता है, उसका एक जो है अंदाज़ा लगाने के लिए हम कुछ कुरान का हिस्सा पढ़ेंगे और उसका तर्जुमा करके देखेंगे। याद रखिए अल्लाह ताला ने आपको इस कोर्स के लिए मुंतखब किया है, इसको ज़ाया ना करें और जो है रब्बी ज़िदनी का इल्म का जो है वो करें। और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है सिखाएं, यानी सीखें भी और सिखाएं भी। वरना याद रखें जो कुछ आप सीखते जाएंगे आर्जी तौर पे याददाश्त में होगा, फिर भूल जाएगा वक्त के साथ। लेकिन अगर आप दूसरों को बताते रहेंगे और दूसरों को सिखाते रहेंगे तो ये आपको खुद भी जो है ऑटोमेटिकली जो है याददाश्त को बढ़ाता जाएगा। तो आइए अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। इसके साथ ही हमारी आज की ये क्लास जो इख्तिताम पूरी होती है। अब आपके अगर कोई सवाल जवाब है तो वो आप जो है वो कर लीजिए। यस जी सिस्टर नाहिद, आपका कोई सवाल तो नहीं? अच्छा अनम्यूट था इसलिए मैंने पूछा। जी सिस्टर। मुझे ये पूछना था कि मुझे एक टेबल आपने पीछे किए थे जिसमें आखिर में वो मुझे लग रहा है कि जब नहनो वाले इस पे होते हैं ना, उसमें जब आप जोड़ रहे थे वो मुझे लग रहा था नून
थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से वो जोड़ा था, मुझे ऐसा लगा। वो ना का लफ्ज जो है पूरा पूरा आता है उसमें। जी जी नहनु, नहनु जैसे होता है ना, यंसुरूना, यंसुरूना के साथ नी जो है इजाफा हुआ है, वो इसी हाँ तरह बनता है। यंसुरूना नी, उसका हाँ, तलफ़्ज़ है यंसुरूना नी, थोड़ा यानी सा हमने मदद की या हम मदद करते हैं, हम मदद करते हैं, ये करेंगे मेरी नी, क्योंकि नी के साथ हम उसका वो कर रहे हैं ना, विर्द कर रहे हैं, मिला के देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बनेगा, तो वो यंसुरूना नहीं है। मतलब बाद मजाक दफा अरबी में मुझे लगता है कि बहुत लॉजिक नहीं होती, उसको आपको फिर याद रखना पड़ता है, मतलब कोई इसका सेंस उस तरह बनता नहीं है, आपको उसको याद रखना पड़ता नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं है सिस्टर, इंशाल्लाह अरबी ग्रामर भी हम आपको पढ़ाएंगे, आप पढ़ने वाले बने आए इंशाल्लाह। ये रमजान मुबारक में हम जो है वो इसका पूरा कोर्स एक दफ़ा दोहराएंगे अरबी ग्रामर का, घंटे की क्लास में तरावियों में, और इंशाल्लाह आपको ये वो चीज़ें ये जो उसी में आपको नहीं पढ़ाई जाती या बहुत लेट जाके पढ़ाई जाती है, वो हम आपको इब्तदाई क्लासों में ही पढ़ा देंगे, वहीं आपको ये चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये इससे पहले आपने इस चीज़ में नहीं पढ़ा होगा कि अच्छा किसी एक किस्म या जो है वो फेल को इसम के साथ मिला के इस तरह गिरदान माजी और मुदारे के लिए पहली दफ़ा मैंने किया है। हो सकता है आने वाले कोर्सों में मैं इसमें कुछ तब्दीली करके इसको और बेहतर शक्ल में ले आऊँ, लेकिन ये इब्तदाई एक वो आइडिया देना था कि कुरान में जब भी आप कोई ऐसा लफ्ज़ पढ़ते हैं जो फेल और जो है वो इसम के साथ आ रहा है, तो उसको तोड़ें। जब तोड़ेंगे तो आपको उसका तर्जुमा और उसकी समझ फहम ज़्यादा आसानी से। सही, जज़ाक। चलें फिर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।